students, in previous lecture you have studied about coordination in animals, coordination in human beings. Human beings coordinate through their nervous system and endocrine system. Human nervous system consists of central nervous system and peripheral nervous system. We have studied about these systems in previous lecture. Now, central nervous system consists of brain and spinal cord. Now, today I teach you structure of human brain and its parts and their functions. Okay बेटा, human brain कैसा है इसका structure? Human brain. जैसे ट्री होता है वैसे ही बनाएंगे बेटा. In same way, क्या क्या है इसके पार्ट्स बाद में बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम. ओके बेटा. ओके बेटा. Draw the membranes. In this way. You can draw in this way. Okay बेटा.
in this way. Okay, beta. Then label this diagram. This is human brain. Structure of human brain. Human brain. Parts of human brain. Forebrain, number 2, midbrain, number 3, hindbrain, hindbrain, forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, beta. This part is skull. ये कंप्लीट क्या है? स्कल, खोपड़ी, और इसमें ये क्या है? जिपर लाइक टाइट बोन्स जहां हेल्ड है, ये क्या है? क्रेनियम. तो स्कल की बात करें, कंप्लीट क्या है? स्कल. आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव बोनी कवर है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वो कौन है? स्कल. ठीक है. स्कल कहें या फिर हम कह सकते हैं क्रेनियम. क्रेनियम वो बोनी केज है जिसके अंदर हमारा ब्रेन है. स्कल तो ये कंप्लीट है. दिस इज स्कल, खोपड़ी. दिस इज स्कल. क्रेनियम. क्रेनियम. क्रेनियम के अंदर क्या है? ब्रेन. Cranium is a bony cage. बोन से बना हुआ एक कवर है, एक बॉक्स है जिसके अंदर एक डेलिकेटेड ऑर्गन है, दैट इज ब्रेन. तो ब्रेन को कौन कवर कर रहा है? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्रेनियम. क्रेनियम. कुछ और भी है. ब्रेन को कवर कर रही है 3 मेम्ब्रेन्स. ब्रेन को कवर कर रही है 3 मेम्ब्रेन्स. दीज मेम्ब्रेन्स आर meninges. These are 3 membranes. 3 membranes. Okay. Meninges are 3 membranes. These membranes protect our brain. And cranium is a bony cage, bony box that protects our brain. Okay, that holds our brain. Cranium, ये complete क्या है? Skull. इस part की बात करें, this is cranium. Cranium holds brain और brainium covered है 3 membrane से, जो कि क्या है? meninges, that are called meninges. And there is a fluid. There is a fluid in these membranes. That fluid. There is a fluid present in membranes. Membranes के 3 membranes के बीच में क्या है? fluid. क्या है? एक fluid. cerebrospinal fluid. कौन सा fluid है? cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Okay. Cerebrospinal fluid. This is forebrain. Fore means आगे. Fore means आगे. ब्रेन का जो आगे का पार्ट है, ये कंप्लीट क्या है? forebrain. Forebrain. This is our forebrain. And forebrain consists of cerebrum. Cerebrum.
brain. This is mid brain. Okay, this is mid brain. This is mid brain, and this part there is a gland, hypothalamus. Hypothalamus. Forebrain. Forebrain consists of cerebrum. It is midbrain, and there is a hypothalamus gland located. Okay, and there is a gland, pituitary. Pituitary gland. Hypothalamus gland, pituitary gland. Okay, beta. And there is a gland. There is a gland, pineal gland. Pineal gland. Okay. Pons. Pons. Medulla. Pons. Medulla. And this part is cerebellum. Cerebellum. Pons, medulla, cerebellum. Pons, medulla, cerebellum. Okay. Our hindbrain consists of pons, medulla, and cerebellum. तो ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? हिंड ब्रेन. दिस पार्ट इज हिंड ब्रेन. दिस पार्ट इज हिंड ब्रेन. ओके बेटा. एंड आवर ब्रेन इज अटैच्ड विद स्पाइनल कोड. इसके बाद ब्रेन से अटैच्ड है कौन? स्पाइनल कोड. ओके बेटा. Medulla is also called base stem of the brain. Medulla is also called stem of the brain. First of all, this part is forebrain. This is, and it consists of cerebrum. This part is midbrain, and there is hypothalamus gland located, and there is pituitary gland, and you can see here pons, medulla, and this part is cerebellum. All of these three parts combine to form hindbrain. They form hindbrain. Hindbrain consists of pons, medulla, and cerebellum. Now, I'm telling about functions of these parts. What are the functions of these parts? Forebrain. Function of forebrain. क्या करता है ये forebrain? Forebrain is our thinking part. Forebrain is thinking part of the brain. Forebrain, midbrain, and hindbrain. Functions, their functions. Forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain is thinking part of the brain. Forebrain is thinking part of the brain. Thinking part of the brain. Forebrain क्या है? Thinking part of the brain. सोचने का काम करता है. Okay. Forebrain, thinking part of the brain. सोचने का काम करता है. It is associated with, किससे
thinking, reasoning, and memory. सेंसरी इम्पल्सेस जो कि रिसेप्टर से आते हैं, उन्हें कौन रिसीव करता है? ये फोरब्रेन सेपरेट एरियाज हैं इसके पास। ये क्या करता है? सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है। इट हैज सेपरेट रीजन्स। इट हैज सेपरेट regions for sensory impulses. Sensory impulses coming from receptors. रिसेप्टर से आने वाली जो भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं, इम्पल्सेस मीन्स इंफॉर्मेशन है, सेंसरी मीन्स सेंस ऑर्गन्स जो हैं, स्किन, आईज, नोज, ईयर, टंग, ये जो भी स्टिमुलस देख रही हैं, डिटेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या होंगी? वो जो है इंफॉर्मेशन है, इम्पल्सेस आगे ट्रांसमिट होगी और वो नर्वस सिस्टम में आकर, नर्व्स के थ्रू नर्वस सिस्टम में आकर जो है ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन में स्टोर हो जाएंगी। ब्रेन में जो है सेंसरी इम्पल्सेस के लिए क्या पर्टिकुलर एरियाज है, लोकेशंस हैं, डिफरेंट सेंसरी इम्पल्सेस के लिए डिफरेंट जो है फोर ब्रेन में रीजन्स हैं। ओके बेटा, इट हैज सेपरेट रीजन्स एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ हंगर। इट consists of center, yeah, it has center of hunger. It consists of a special area, एक स्पेशल जगह इसके पास, या स्पेशल रीजन कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल रीजन फॉर हंगर। भूख लगती है आपको, कैसे पता लगता है? एनर्जी की कमी हो जाती है बॉडी में। एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से। तो फूड की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे पता लगता है? भूख लगती है, एनर्जी की कमी होती है, तो बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन तक। तो ब्रेन में स्पेशल एरिया है, रीजन है जो हंगर से एसोसिएटेड है। वो बताएगा कि हमें भूख लगी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और इंस्ट्रक्शंस देता है कितना खाना चाहिए। खाते ही रहोगे, खाते ही रहते हो, पता है ना आपको कितना खाना है, किसकी वजह से? ड्यू टू फॉर ब्रेन। ओके बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। फॉर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ cerebrum and cerebrum controls all voluntary actions. Cerebellum controls all voluntary means जो अपनी मर्जी से हो जाते हैं actions, voluntary actions. Cerebellum controls all voluntary actions of the body. हमारे सभी voluntary actions को कंट्रोल कौन करता है? cerebrum. जैसे voluntary actions जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट को ये अलाउ करता है। लाइक मूवमेंट इन लेग्स, मूवमेंट इन आर्म्स और बॉडी मूवमेंट्स, ये सब वॉलेंट्री, हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, डांस करते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं। तो ये सब क्या वॉलेंट्री एक्शंस? तो किसके थ्रू होते हैं? सेरेब्रम क्या करवाता है? वॉलेंट्री एक्शंस, स्केलेटल मसल्स को अलाउ करता है फंक्शन करने के लिए। साथ ही फॉर ब्रेन के पास क्या? मोटर एरियाज। इट हैज मोटर
एरियाज, मोटर एरियाज है तो ये क्या करेगा, ये बताएगा कैसे रिस्पॉन्स देना है, ये इंस्ट्रक्शंस देगा मोटर एरियाज को, ये बताएगा कि मोटर एरियाज कैसे ऑर्गन्स तक इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाएं। ठीक है, जब किसी ऑर्गन तक, किसी हार्मोन, किसी ऑर्गन तक, टिश्यू तक जो है इंस्ट्रक्शन पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, फंक्शन करेगा। फॉर ब्रेन हैज मोटर एरियाज, फॉर ब्रेन हैज मोटर एरियाज, मोटर यानी कोई एक्टिविटी, तो मोटर एरियाज हैं ब्रेन के पास, मोटर एरियाज को ये इंस्ट्रक्ट करेगा, फिर मोटर एरियाज वर्क करेंगे, मोटर एरियाज से कोई भी इंस्ट्रक्शन जाएगी हमारे बॉडी पार्ट्स में, इफेक्टर्स में। ठीक है, और फिर इफेक्टर्स क्या करेंगे, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या करेंगे, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके पास, फोर ब्रेन के पास क्या, मोटर एरियाज, मोटर एरियाज कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे मैसेजेस ट्रांसमिट होने हैं, ये सब काम करता है फोर ब्रेन। ये क्या करता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, इनपुट सेंसरी इंपल्सेस लेता है और मोटर इंपल्सेस देता है, आउटपुट देता है। इनपुट लेना, न्यूरॉन क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, प्रोसेसिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं केमिकल्स की फॉर्म में और उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वो नर्व्स के थ्रू क्या आती है, ट्रांसमिट हो जाती है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। मेनली हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है ब्रेन, टीवी को कंट्रोल करता है रिमोट कंट्रोल, हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है मेनली हमारा ब्रेन। लेकिन कुछ एक्शंस हैं जो स्पाइनल कॉर्ड करती है, दैट एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस, जो कि ऑटोमेटिक है, अपने आप हो जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता। मैं आपको बता रही थी मोटर एरियाज है ब्रेन के पास, ये बताएगा कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को इफेक्टर्स तक पहुंचाना है। ओके, इट टेल्स about how to transmit information, how to respond, how to send information to effectors, or we can say organs, और फिर organs क्या करेंगे, organs do their